A very good morning, students. So we will continue with probability in this lecture. In the previous lecture, we have seen all the terms and the definitions that are used in the probability. Students, today we are going to solve exercise 7.1. We have already done the definition of sample space and events, and the definition of sample space will be used in this. If you don't remember, kindly revise it before watching this video. So the first question says, state the sample space and ns for the following random experiment. So this random experiment is given and we have to write the sample space. So question number 1, A part. A coin is tossed twice. If second throw results in tail, a dice is thrown. So if a coin is tossed twice, so what will be its outcome? If coin is tossed twice, so its outcomes will be head head, head tail, tail head, and tail. So its outcomes will be 4. But then the question says, if a second throw results in tail, a die is thrown. If the second throw result in tail, so students, we just have two options here whose second throw result in tail. So one option is this, so one outcome is this and the second outcome is this. अगर तो हेड आएगा तो हमें डाई थ्रो नहीं करना, लेकिन जब टेल आएगा तो हमें डाई थ्रो करना है. सो द सैम्पल स्पेस बिकम्स when head came, we don't need to we don't need to roll a dice. And when tail head comes, obviously the second throw results in head, we don't need to roll a dice. But if tail will come, we will roll a dice. So we know that when we will roll a dice, we get 6 outcomes, 1 to 6. So we can get a 1, we can get a 2, we can get 3 after it, 4, 5, 6. So the total outcomes, if the second is tail, so will be 6 outcomes. In the similar way, if I have head and tail, अब second throw में फिर tail आ रहा है, so the outcomes become head tail 1, head tail 2. We know that कि अगर dice roll होगी तो उसके भी 6 outcomes हैं, so we have to write all the possibilities. So this will be the samples. So this will be my sample space. If coin is tossed twice and in the second throw results in the tail, a die is thrown or rolled. So now it says we have to write the sample space. So we have written the sample space. This will be the sample space. And it also says write the cardinality or the number of elements in S. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So the cardinality of S is 14. Let's move to the second part, that is B part. A coin is tossed twice. Obviously there will be outcomes will be this. If second throw results in head, a dice is thrown. Otherwise, a coin is tossed. So here there are two probabilities. Here we have two cases after that कि हमने कॉइन को टॉस किया 2 बारी, हमारे पास ये 4 आउटकम्स आई हैं. इफ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन हेड, जैसे सेकेंड थ्रो में टेल आ रहा था, ऐसे उसने बोला कि अगर तो हेड आएगा, ये 2 केसेस आएंगे, तो हम वी विल रोल अ डाइस. अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस्ड. अगर नहीं आया तो कॉइन टॉस होगा. सो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले हम वो करते हैं कि अगर सेकेंड थ्रो में हेड आया, दैट इज दिस, सो अ डाइस विल बी रोल्ड. सो द पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6. 2 आ सकता है, हेड पे 3 आ सकता है, 4, 5, 6. Now the second outcome we have head tail, where the second throw results in head. So it will be, and when if dice will be rolled, we'll again observe 6 observations.
head tail 5, head tail 6. नाउ इट सेज, अब हमारे पास दो आउटकम्स रह गई, हेड टेल और टेल टेल. उसने बोला अदरवाइज मतलब अगर टेल आएगा तो एक कॉइन टॉस होगा. तो ठीक है, अगर टेल आया मेरे पास, सो फर्स्ट आउटकम इज हेड टेल, तो कॉइन टॉस होगा. कॉइन टॉस में हमारे पास दो आउटकम होती हैं, तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा. लेट्स सी दिस अगेन. अगर मेरे पास ये आउटकम आती है हेड टेल, तो अगर सेकंड थ्रो में मेरा टेल आ रहा है तो मेरे पास दो आउटकम्स आएंगी, बिकॉज अ कॉइन इज टॉस, और कॉइन टॉस में मेरे पास दो आउटकम्स आती हैं, या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है. इन द सिमिलर वे जब सेकंड थ्रो में टेल आ रहा है तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. So this will be my sample space, and if I have to write the number of elements, it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So the number of elements will come out to be 16. Let's move to the second question. So second question says, in a bag there are 3 balls. One black, one red and one green. 2 balls are drawn one after another with the replacement. State sample space and number of elements of your sample space. So there are 3 balls, one black, one red and one green. 2 balls are drawn one after another with replacement. With replacement का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लू बॉल ड्रॉ की एक बैग में से, तो मैं दोबारा उसमें ब्लू बॉल दोबारा डाल दूंगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव चूजन अ बॉल एंड इट कम्स आउट टू बी रेड, तो बैग में फिर भी कितनी बॉल्स होंगी? 3 बॉल्स रहेंगी, क्योंकि एक चूज करने के बाद मैं दोबारा रेड बॉल को बैग में डाल सकती हूँ. सो इफ आई वुड हैव सेड विदाउट रिप्लेसमेंट, सो लेट अस सी विद द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 3 बॉल्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन. आई से विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट. सो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेड बॉल चूज कर ली, तो मेरे पास अब बैग में कितनी बॉल रह जाएंगी? सिर्फ 2 बॉल रह जाएंगी. दैट विल बी ब्लू एंड ग्रीन. सो दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट, कि जब मैंने एक बॉल चूज कर ली तो मैं उसको दोबारा बैग में नहीं पुट कर सकती. अगर मैंने एक बॉल चूज कर ली तो मेरे पास सिर्फ बैग में 2 बॉल्स रह जाएंगी. बट व्हेन आई से विद रिप्लेसमेंट, अगर मैंने एक रेड बॉल चूज कर भी ली तो मैं उसको दोबारा बैग में डाल सकती हूँ. सो इसमें विद रिप्लेसमेंट बोला है, दैट मीन्स आई कैन पुट द बॉल आफ्टर चूजिंग इट, आई कैन पुट द बॉल अगेन इन द बैग. सो द सैम्पल स्पेस विल बी, दोनों ब्लू बॉल्स हो सकती हैं. सो व्हाट वी यूजुअली डू, वी पिक अ बॉल और हम दूसरों के साथ उसका पेयर बनाते हैं. पहले तो ब्लू बॉल है तो ब्लू हो सकती है, रीजन बीइंग की रिप्लेसमेंट हमें अलाउड है. देन ब्लू रेड हो सकती है, ब्लू ग्रीन हो सकती है. इन द सिमिलर वे रेड हो सकती है, रेड ब्लू हो सकती है, रेड ग्रीन हो सकती है. अगेन ग्रीन हो सकती है, ग्रीन ब्लू हो सकता है और ग्रीन रेड हो सकता है. सो दीज आर possible outcomes, and the number comes out to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let me explain the replacement case once again. For example, so here we had 3 balls. So if I say without replacement, so if I have chosen a ball, then the number of balls that will be in my bag will be 2. 2 balls will be left in my bag. If I say with replacement, I have 3 balls here, and I say with replacement, so in the case of with replacement, what will happen? If there are 3 balls, I have chosen one green ball, for example. Even after choosing one green ball, 3 balls will be left in the bag, because I can put that ball again in the bag. So students, let's move to the third question.
So third question says a coin and a dice are tossed. State sample space of the following events. पहले हम इसकी सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, फिर हम इवेंट्स के सेट्स देख लेंगे. कॉइन भी टॉस हुआ है और डाइस भी रोल हुई है. तो कॉइन अगर टॉस हुए तो उसके दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल. और अगर डाइस रोल हुई है तो उसकी 6 है, 1 2 3 4 5 6. अब ये दोनों साइमल्टेनियसली हुए, सो व्हाट विल बी द आउटकम्स. या तो हेड 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6, बिकॉज दे बोथ आर डन साइमल्टेनियसली. पहले कॉइन टॉस हुआ है, फिर डाइस रोल हुई है. सेकेंड आउटकम इज टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, 5 एंड 6. So these 12 are the total outcomes. Let's solve first case. It says set A getting a head and a even number. So हमारे पास head वाली outcomes ये हैं, head भी आए और even number भी आए. So the outcomes will become this. B part say getting a prime number. So we getting a prime number. So we know that उसने head और tail पे condition नहीं लगाई, उसने सिर्फ ये बोला है कि प्राइम नंबर आना चाहिए. तो प्राइम इज 2, 3 एंड 5. सो द आउटकम्स विल बिकम हेड 2, हेड 3, हेड 5, ऑल्सो टेल 2, टेल 3, टेल 5. सी पार्ट गेटिंग अ टेल एंड अ परफेक्ट स्क्वायर. अच्छा, अब टेल वाली आउटकम्स देखो, टेल भी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए. अब इसमें से कितने परफेक्ट स्क्वायर है. 1 है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है. सो द सेट सी बिकम्स टेल 1 एंड टेल 4. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस विल बी आवर आउटकम्स. लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन. So students, before starting fourth question, I must tell you that the concept of permutation and combinations will be used in this exercise as well. So question says find total number of distinct possible outcomes for each of the following random experiment. If you will observe the question carefully, they have asked the total number of elements of possible outcomes only. They have just asked the number of elements, that is cardinality of S. उन्होंने ये नहीं बोला कि S सेट मेंशन करो कि सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे. उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछा है. सो लेट्स सी द फर्स्ट केस. फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 25 लॉटरी टिकट्स एनी 3 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम. 25 टिकट्स में से 3 टिकट्स चूज किए है. सो वेन एवर वी सिलेक्ट समथिंग, चूज समथिंग, वी ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन. सो इट विल बिकम 25C3. एंड यू नो दैट टू सॉल्व दिस it will come out to be this. 25 minus 3 is 22 factorial. You have to solve this factorial and find the answer because we have to find n here. B part. From a group of 4 boys, 3 girls, any 2 students are selected at random. तो total students यहाँ पर कितने हो गए 7. 7 में से कितने students select किए हैं 2. So whenever I select or choose something, I use combination, so it will become this. Again you have to solve this factorial because they have asked the number. I am not doing it because we have done this multiple times. 5 balls are randomly placed into 5 cells. हमारे पास 5 cells हैं ऐसे, और उसमें 5 balls प्लेस की गई हैं such that each cell will be occupied. So we have to state the number. तो फर्स्ट के पास कितने पॉसिबल हैं 5 बॉल्स में से, फॉर एग्जांपल 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, तो 5 में से फर्स्ट के पास कितने ऑप्शंस हैं 5 ऑप्शंस हैं. सेकंड के पास अब यहाँ पर एक बॉल फिल हो गई, 4 ऑप्शंस रह जाएंगे, 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, 1 ऑप्शंस. यू कैन डू दिस इन दिस मैनर ऑल्सो.
that will be 5 factorial 120. Or how we can do is we can use the concept of permutation also. D, 6 students are arranged in a row for photograph. We have to arrange here. We are not selecting here. We have to arrange here. Whenever the concept of arrangement comes, we know that we use the concept of permutation. So हमें 6 स्टूडेंट को अरेंज करना है 6 प्लेसेस पे. So 6 students are arranging at 6 places. So or we can write it as 6 factorial 720. So there will be 720 outcomes. So students, try to solve fifth question on your own. Now we will be solving question number 6. So question number 6 says a card is drawn at random. A card is drawn at random from an ordinary pack of 52 playing cards. State the number of elements in the sample space if consideration of suit is not taken into account is taken into account. Okay, again here they have not asked the elements of the sample space. They have simply asked the number of elements in the sample space. Again, the concept of permutation and combination can be used. If consideration of suit is not taken into account. सूट क्या होते हैं बेटा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हमारे पास 4 सूट होते हैं, डायमंड, स्पेड, एस एंड हार्ट. तो उसने बोला है कि कोई फर्क नहीं पड़ता. इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट का मतलब है कि कोई भी सूट सिलेक्ट हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि हार्ट के ही होने चाहिए चारों, ज़रूरी नहीं है कि सारे स्पेड के ही होने चाहिए. सो व्हेन वी आर सेइंग कि इट्स नॉट टेकन इनटू अकाउंट मतलब हम कोई भी चूज कर सकते हैं कार्ड. So that will be 52 में से 2 कार्ड, सॉरी 1 कार्ड इज सिलेक्टेड. सो 52 में से 1 कार्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो इट विल बी 52 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 51 फैक्टोरियल. सो द आंसर विल कम आउट टू बी 52. सो इन बी पार्ट इट सेज इफ इट इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब जो हमारा सूट है उसको हमने अकाउंट में लिया है. इसका मतलब ये है कि जो एक कार्ड है वो एक पर्टिकुलर सूट से आना चाहिए. हमने क्या किया है, यहाँ पर जो 4 सूट्स हैं उनमें से अलग अलग एक सूट, पर्टिकुलर सूट हमने चूज किया है. फॉर एग्जाम्पल 4 सूट्स हैं तो 4 सूट्स में से पहले एक सूट सिलेक्ट होगा. देन 52 तो हर एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं और 13 कार्ड्स में से एक सिलेक्ट होगा. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. इफ इट सेज अ सूट इज कंसिडर्ड मतलब हमने अब जो कार्ड है अपना एक पर्टिकुलर सूट से करना है. फॉर एग्जाम्पल हमने हार्ट को कंसिडरेट कर लिया तो अब जितने भी कार्ड सिलेक्ट होंगे वो हार्ट वाले सूट से ही सिलेक्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन इनटू कंसिडर स्पेड, तो जितने भी कार्ड अब सिलेक्ट होंगे स्पेड से होंगे. तो पहले तो हमने 4 सूट में से एक सूट सिलेक्ट कर लिया. फिर अब हर एक सूट में 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड में से हमने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया. सो दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 13. इफ यू विल सॉल्व दिस विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सिमिलरली इट विल बी 13 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. सो दिस कम्स आउट टू बी 4 into 13, that comes out to be 52 only. Let's move to question number 7. So here my question number 7 says box 1 contain 3 red and it is represented by R11, R12, R13. 2 blue balls, so they are considered like this. Marbles 3 red and 2 marbles, while box 2 contains 2 red and 4 blue marbles. A fair coin is tossed. If coin turns up head, a marble is chosen from box 1. If it turns up tails, a marble is chosen from box 2. Describe the sample space. So first case we will consider if head turns up. इफ हेड टर्न्स अप तो हमारे पास क्या सैम्पल्स, कौन सा बॉक्स चूज होगा?
अगर हेड्स आएगा द मार्बल इज चूजन फ्रॉम बॉक्स 1, और बॉक्स 1 में मेरे पास कितने हैं, 3 रेड और 2 ब्लू है। अगर हेड्स आता है तो पहले क्या आ सकता है, फर्स्ट रेड बॉल आ सकती है, सेकंड रेड बॉल आ सकती है, थर्ड रेड बॉल भी आ सकती है। और क्या केसेस हैं, हमारे पास 2 ब्लू मार्बल्स भी हैं, तो फर्स्ट ब्लू मार्बल भी आ सकता है, सेकंड ब्लू मार्बल भी आ सकता है। इन द सिमिलर वे वी विल टेक सेकंड केस, इफ टेल टर्न अप्स। इफ टेल टर्न अप्स तो हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, वी विल देन सिलेक्ट द सेकेंड बॉक्स। हमारे पास 2 रेड बॉल है, तो फर्स्ट रेड बॉल आ सकती है, सेकेंड रेड बॉल, फर्स्ट रेड बॉल आ सकती है, दैट इज 2 1 2 2। स्टूडेंट्स हियर व्हेन द इफ यू विल सी, यहाँ पर 2 रेड बॉल्स दे रखी हैं, एक के साथ है 2 1 और एक के साथ है 2 2। इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग हैं। सो देयरफॉर वी आर कंसिडरिंग, वी आर टेकिंग द डिफरेंट केसेस। सिमिलरली टेल के साथ हमारे पास सेकेंड बॉक्स में 4 ब्लू बॉल्स हैं, सो इट विल बी टेल एंड अ ब्लू बॉल, फर्स्ट ब्लू बॉल, सेकेंड ब्लू बॉल, थर्ड blue ball and fourth blue ball, and then my total sample space will become A union B, क्योंकि मुझे दोनों केसेस कंसिडर करने हैं। सो टोटल A union B will be A11 HR12 So let's count the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So the number of elements in the sample space will be 11. Let's go to 8th question. So 8th question says, consider experiment of drawing 2 cards at a random from a bag containing 4 cards marked 5 6 7 8. कार्ड्स के ऊपर मार्क किया हुआ है 5 6 7 8, 4 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने कितने सिलेक्ट किए हैं, 2 कार्ड सिलेक्ट किए हैं। फाइंड द सैम्पल स्पेस इफ द कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। वी नो दैट इफ दे आर चूजन विद रिप्लेसमेंट, ए पार्ट का सैम्पल स्पेस विल बी, अगर वो विद रिप्लेसमेंट चूज हुए हैं तो हम कार्ड्स को वापस बैग में डाल सकते हैं। सो सैम्पल स्पेस विल बी, या तो दोनों कार्ड्स 5 5 आ जाए, या 5 6 आ सकते हैं, 5 7 आ सकते हैं, 5 8 आ सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट विल बी 6 6 आ सकते हैं, 6 5 आ सकता है, 6 7 आ सकता है, 6 8 आ सकता है। नेक्स्ट विल बी 7 7 can come, 7 5 7 6 7 8. In the similar way 8 8 8 5 8 6 8 7. So this will be the sample space. So the B part you students will do yourself. I am just giving you one hint here, without a replacement. Without replacement मतलब अगर एक बारी मैंने 5 चूज कर लिया तो दोबारा मैं 5 चूज नहीं कर सकती। सो जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें ये कंसिडर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक बारी 5 चूज कर लिया तो दोबारा मैं 5 नहीं चूज कर सकती। सिमिलरली 6 6 वाला केस भी कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज एक बार अगर 6 चूज कर लिया द सेकेंड टाइम वी कांट चूज 6। Similarly, this case will not be considered, this case will not be considered, else all cases will be considered in the second. So students, next topic is concept of probability. So students, you already know that the probability, the value of probability lie between 0 to 1. You have already done this in your earlier classes. The probability is 0 when it is an impossible event, when we know that event will not occur, and 1 when we know that the event will occur. And the probability lie between 0 to 1. So if there is an event A,
then the probability of A will lie between 0 to 1. So we have already done this in earlier classes. If I say that probability is 1 by 4, if I say the probability of event is 1 by 4, that is there are 25% chances that the event will occur. So students, if I say, then there's one more concept that you have already done in your earlier classes, but let's revise it. If I say that event A is the probability of event A that event will occur, then the probability that it will not occur will be A complement or A dash. You have already done in the sets कि A के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो A dash में होंगे. So the probability of A complement or A dash will be it will not occur. And students, we already know that कि दोनों की प्रोबेबिलिटी अकर होने की या फिर अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करेंगे, द एडिशन ऑफ बोथ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. So the next thing that you have to revise or you have to keep in mind is probability of happening an event or probability of not happening an event. So both the probabilities add up to 1. So students, then there is one more concept, that probability of A upon probability of A complement. ये है probability of occurring a event, this is probability of not occurring a comment, is equals to the ratio of odds in favor. उसके फेवर में क्या रेशो होगी? The ratio in favor is this, that is A complement upon A complement or A upon A dash. So the next is that if there is a sample space S and on that sample space if there is a sample space S और एक सैम्पल स्पेस में बहुत सारे इवेंट्स शो किए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट A है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट S इज अ सैम्पल स्पेस दैट अ डाइस इज रोल्ड. A मैंने बोल दिया कि पूरे इवन नंबर्स चाहिए, B इवेंट मैंने बोल दिया सारे ऑड नंबर्स चाहिए, C मैंने बोल दिया कि मुझे मल्टीपल्स ऑफ 5 चाहिए. सो इफ देयर आर सो मेनी इवेंट्स, so the event of all the probabilities will add up to 1. So this concept you have already done in the previous classes. So this concept is also used. So then there are some of the properties related to the concept we have done. So the first property say that the probability of event lie between 0 to 1. We have already done that. If phi is a null set, whenever we talk about null set, it means it is an impossible event. Then obviously the probability of null set will be 0. If A is contained in B, मतलब A set छोटा है, B set बड़ा है. अगर A contained है B में तो probability of A छोटी होगी B से, because set A छोटा है as compared to set B. And students, one more concept here, if A and B are two events, then A intersection of B complement is equals to A minus A intersection of B. This concept is also done in your sets chapter, therefore I will not explain it. Only the probability part is added here. So this was some of the concept. Let's solve the questions related to this topic. So let's solve question number 2. Let's solve question number 2 here. So question number 2 says 2 cards are drawn from the pack of 52 cards. Find the probability that both are black card. So we know that first let's revise the concept of 52 cards. So हमारे पास 52 cards होते हैं. फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 4 ऑफ ईच सेट और 4 ऑफ ईच सूट एंड 12 कार्ड्स इन टोटल, 3 इन ईच सेट. फेस कार्ड मतलब किंग, क्वीन और जैक,
और 12 कार्ड्स टोटल होते हैं। एस कार्ड कितने होते हैं, जिसे हम इक्का भी कहते हैं, 4 होते हैं। एंड और हर एक सूट्स कितने होते हैं, हमारे पास 4 होते हैं। और हर एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। और सूट्स कौन कौन से होते हैं, डायमंड, स्पेड, क्लब एंड हार्ट। सो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 26। और रेड कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 26 कार्ड्स। सो दिस इज सम ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ योर cards, playing cards, and you must know all this concept before solving any of the questions. So it says both are black. So हमें पता है probability solve करने का सबसे है, probability of any event A is favorable outcomes upon total number of outcomes. So we will use this concept to solve all the questions. So favorable total number of outcomes, or I will say sample space, it's one and the same thing. So it will be 52 cards में से कितने cards choose किए हैं, 2. And I am A पार्ट को मैं इवेंट A बोलूंगी, B पार्ट को मैं इवेंट B, सिमिलरली C पार्ट को इवेंट C, G पार्ट को इवेंट G. So probability of happening A, 2 कार्ड्स चूज हुए हैं और दोनों ब्लैक है। हमें पता है ब्लैक 26 कार्ड्स होते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 26C2. सो प्रोबेबिलिटी बिकम्स 26C2, दैट इज दिस इज माई फेवरेबल आउटकम, अपॉन माई टोटल आउटकम दैट इज 52C2. सो द probability becomes this. You have to solve this whole and find it in terms of numbers. Let's move to the B part. So the B part says both are diamond. So we know that there are 13 cards which are diamond. So again the sample space is 52C2 and the probability of event B, my favorable or the favorable outcomes is 13C2. मैंने सिर्फ डायमंड में से 2 कार्ड चूज किए, सो द प्रोबेबिलिटी बिकम्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इन द सिमिलर वे सी दैट बोथ आर एस कार्ड्स. हमारे पास 4 एस कार्ड्स होते हैं एंड वी नो दैट choosing 2 cards out of ace card will be 4C2. Obviously we are choosing, we are selecting, therefore हर एक में combination का concept use हो रहा है. So the probability of event C will become favorable outcome upon total number of outcomes. In the similar part D, both are face cards. दोनों face cards हैं. हमारे पास कितने face cards होते हैं? टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड्स है बेटा. सो 12 में से हमने 2 चूज किए. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी बिकम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ई पार्ट, 1 इज स्पेड एंड 1 इज नॉन स्पेड. सो स्पेड कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 13 कार्ड्स है. हमें पता है हर एक सूट 13 का होता है. तो नॉन स्पेड कितने हो जाएंगे बेटा? दैट विल बी 52 माइनस 13, दैट कम्स आउट टू बी 39. सो द स्पेड कार्ड्स आर 13 एंड नॉन स्पेड कार्ड्स आर 39. एक कार्ड स्पेड में से चूज किया है और बाकी के कार्ड्स 3 कार्ड्स रह गए. एक कार्ड मैंने स्पेड से चूज किया है और बाकी के जो 3 कार्ड्स है वो मैंने नॉन स्पेड से चूज किया है. Therefore, the probability of event E will become, एक कार्ड यहां से चूज किया है, दूसरा कार्ड यहां से चूज किया है. The case will become multiplication case because this event is also happening, this event is also happening. तभी तो हमारे पास टोटल 4 कार्ड सिलेक्ट होंगे ना अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. Similarly, F is both are from same suit. तो सूट कितने होते हैं हमारे पास? 4 सूट्स हैं. 4 सूट्स में से ही सिलेक्ट हुआ है. तो पहले तो हम सूट को सिलेक्ट करेंगे. 4 सूट में से एक सिलेक्ट कर लिया.
अब हर एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 13। तो 13 कार्ड्स में से हमने 2 सिलेक्ट कर लिए। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। हमारे पास 4 सूट होते हैं और हर एक 4 सूट्स में वी हैव 13 कार्ड्स। सो फर्स्ट वी विल सिलेक्ट वन ऑफ द सूट्स बिकॉज इट सेज दैट बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट। तो हम पहले क्या करेंगे, 4 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट 4 सूट में से एक सूट सिलेक्ट करेंगे और फिर हर एक सूट में 13 कार्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डायमंड सूट सिलेक्ट कर लिया तो डायमंड के 13 में से 2 सिलेक्ट करेंगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बिकम्स 4C1 into 13C2 upon 52C2. Similarly, let's see the G part. G part says that both are from same denomination. अब डिनोमिनेशन क्या होता है? डिनोमिनेशन मतलब कि अगर 2 कार्ड्स, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट माई कार्ड इज किंग, तो जो दोनों कार्ड हैं वो किंग के होने चाहिए। इफ आई से कि मेरा एक कार्ड जो निकला है वो 2 है तो सेकंड वाला जो है वो भी 2 होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो डायमंड का हो, स्पेड का हो, हार्ट का हो, जिसका मर्जी हो। ओके, सो हियर वी हैव 13 डिनोमिनेशंस। हाउ वी हैव 13 डिनोमिनेशन? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। एस की एक डिनोमिनेशन हो गई बेटा, 2 की एक डिनोमिनेशन हो गई, 3 की डिनोमिनेशन अलग हो गई, 4 की डिनोमिनेशन अलग हो गई। सिमिलरली जैक की डिनोमिनेशन है हमारे पास, क्वीन की डिनोमिनेशन है। सो देयरफॉर हमारे पास कितनी डिनोमिनेशंस हैं? 13 डिनोमिनेशंस हैं। इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो द कंसेप्ट ऑफ डिनोमिनेशन, यू मस्ट हैव डन इन योर अकाउंट्स और अदर सब्जेक्ट्स। जैसे हम रुपीज की डिनोमिनेशंस देखते हैं। बोथ आर फ्रॉम द सेम डिनोमिनेशन, मतलब जो दोनों कार्ड्स हैं वो सेम डिनोमिनेशन से होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बिकम 13 इंटू, हर एक कार्ड की अगर हम डिनोमिनेशन देखेंगे सो इट विल बी 4C2 अपॉन 52C2।